And in some breaking news coming in, farmers have finally suspended their protest, which has been going on for over a year. You can actually see those visuals of them taking down the tents, etc., that were put up at the Singhu border and leaving at this point in time. So finally, on the 11th of December is when the farmers will be leaving their the protest sites. Alok is joining us for more details. Alok, this is in fact extremely significant here in terms of the multiple issues, the multiple deadlocks. Finally, this stir has come to an end. The farmers will be leaving the borders of the national capital by the 11th of December. Well, yes, now 1 year of their stir, 1 year of the protest is now going to be ended. What we are learning, because the SKM meeting, which was happening over here at Singhu border, is now being ended, and now the government has also sent the proposal letter. That final copy of the letter, final copy has already been sent to the SKM, and because remember yesterday the proposal from the government side which was sent, which was the acceptance of all the demands of the farmers, that was in fact unanimously accepted by the farmers group, that 40 farmer union group. And yesterday they had requested the government to send them the signed copy of the letter. Now today from the agriculture minister there is the signed copy of the secretary of the agriculture secretary. He has signed the copy and he has sent the proposal in the letter form. So that is why the farmers have now announced today that they are suspending the protest that they started on 26th of November last year, and now they are saying that they are ready to go back. But tomorrow there will be the packing and all the things will be packed up. One day they will take for wrapping up all the items. Remember, thousands of tractors and thousands of tents are in fact are at the borders, or at the three borders of the national capital, Singhu, Tikri and Ghazipur, and they want to celebrate it because it was a historical victory for the farmers from Punjab, Haryana and various other states. So they want to celebrate it, and that is why they are taking some time for the preparation of the celebration. And on 11th of December, they will start going back. Sir, क्या शेखो सर क्या है स्थिति अभी, क्या बताएंगे? देखो, बात ये है, कल जो गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट भेजा था उस ड्राफ्ट में कुछ अमेंडमेंट हम चाहते थे। आज गवर्नमेंट ने वो अमेंडमेंट्स करने के बाद वो ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने अथोराइजेशन लेटर भेज दिया है, और वो हम कल्चर सेक्रेटरी का सिग्नेचर भी है। हाँ, और इसलिए आज की एसकेएम की मीटिंग में उसको मंजूर कर लिया गया है। आज हमने इस मोर्चे को समाप्त करने का फैसला किया है, और आज शाम को 5 बजे सिंघू बॉर्डर की स्टेज के ऊपर ये अरदास होएगी। सिंघू बॉर्डर की स्टेज समाप्त करने का कार्यक्रम किया जाएगा, और उसके बाद फिर हम कल को इसको बाइंड अप करेंगे, और परसों को 9 बजे जहां से पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए अपने अपने स्थानों के लिए प्रस्थान करेंगे। और उसके बाद हम 13 तारीख को हरमंदर साहब जाकर और वहाँ पंजाब की जो 32 ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ नतमस्तक होंगी और शुक्राना करेंगी, और शुक्राना करने के बाद 15 तारीख को हम जो हमारे पंजाब में डिफरेंट मोर्चे चल रहे हैं उनको बाइंड अप करेंगे, और चंडीगढ़ में हमारी 32 किसान जथेबंदियों की मीटिंग होगी। आने वाला पंजाब का क्या कार्यक्रम है वो उसमें पंजाब की मीटिंग में बैठ के चंडीगढ़ में हम उलीकेंगे। लेकिन एमएसपी के लिए जो लड़ाई है वो हम कह सकते हैं सर अभी भी जारी रहेगी, क्योंकि एमएसपी को लेकर के कमेटी फॉर्मेशन को लेकर, ये एमएसपी एक कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा है, और इसके ऊपर अभी सरकार ने कमेटी फॉर्म की है, और उसको देखते हैं उसका क्या समय है, उसका स्थान क्या है, उसका क्या वो है, सारा देखने के बाद हमारी लड़ाई इसके ऊपर जारी रहेगी। और 15 जनवरी को यहाँ ही एसकेएम की दिल्ली में मीटिंग होगी, और सरकार ने आज जो ड्राफ्ट भेजा है
और उसके बारे में कितनी शर्तें पूरी की हैं और उसके बारे में हम अपना एनालिसिस रिव्यू करेंगे। और आने वाला जो प्रोग्राम है वो 15 जनवरी की मीटिंग में रिव्यू करने के बाद जो हमारी मतलब ये मेन डिमांड है, इसके ऊपर लड़ाई कैसे लड़नी है, उसकी युद्ध नीति जो है वो लड़ाई के लिए वो करेंगे। इसीलिए आप लोग इस मामले को अभी आप लोग सस्पेंड कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से प्रोटेस्ट खत्म हो गया, सस्पेंड किया गया है। और इसलिए सस्पेंड करने के बाद गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया है वो कितना फुलफिल करते हैं और उसको रिव्यू करते हुए आगे वाली लड़ाई 15 जनवरी को दोबारा रिव्यू करने के बाद वो कैसे करनी है वो हम आगे 15 जनवरी को डिसाइड करेंगे। So you categorically heard the voices of these farmer leaders. These are farmer leaders unions who are talking to us, and they are telling us their program, the coming 1 month program, that when they are going to go at Amritsar, and then they will on 15th of January they are again going to meet and keep, and in this 1 month they will keep an eye on the activities whatever the government is doing that is related, because the promises have been made by the government. So they will look for that, whether the promises are being fulfilled or not, and then on 15th of January they are again going to meet and decide their future course of action. That is why they are saying this protest, that the protest which was started on 26th of November last year, it has now been suspended, means the demand for the MSP will remain continue from the farmers. Back to you. Yes, absolutely, Alok. So obviously at this point in time, this is after 1 year quite significant. But obviously now what remains to be seen is how all of these promises are implemented, how the assurances will be implemented, especially when we talk about the issue of MSP, the compensation part of it, the withdrawal of the cases, any kind of timeline that the farmers have in fact discussed with the government at this point in time over all of these issues? Well, I will pose this question to other farmer leaders as well. Sir, कोई टाइमलाइन सरकार को दे रहे हैं आप लोग कि इतने दिन में सारे केसेस वापस हो जाने चाहिए या कंपनसेशन इतने दिन में हो जाने चाहिए? जी, हम टाइमिंग तो अभी संयुक्त किसान मोर्चा देगा, मगर मैं एक बात बोल देता हूं, सरकार इसको ये समझ के इजी ना ले ले कि हम अभी इनको उठा दो फिर ये दोबारा मुड़ के नहीं आएंगे। हम अब इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे जे अगर वापस आना पड़ा हमें। सर कोई टाइम ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਜੋ so we will try to talk to him, one of the farmer leaders, very senior farmer leaders. He will tell us that what is the exact situation is right now, but they have categorically saying that they want the demands to be fulfilled as soon as पॉसिबल। सर कोई टाइमलाइन आप लोगों ने दिया है सरकार को कंपनसेशन के बारे में, और अगर कंपनसेशन के साथ साथ जो आप लोगों ने केसेस वापस होने उसकी टाइमलाइन कुछ अभी तक दी है? बिल्कुल, 15 जनवरी को हमने संयुक्त मोर्चे की मीटिंग दिल्ली में रख ली है। अच्छा। और उस समय तक हम जो है इस पर सारी नजर रखेंगे और बाज निगाह रखते हुए हम सारा इस पर अध्ययन करेंगे कि सरकार ने जो हमारे साथ वादे किए हैं उसको पूरा करती हैं कि नहीं करती। ये नहीं करेंगे तो 15 जनवरी को हम दिल्ली में मीटिंग करके अगला प्रोग्राम फिर ऐलान करें। सर एक इम्पॉर्टेंट चीज पूछना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा सरकार ने वादे किए हैं, वो वादे क्या क्या हैं आपको एक बार हमारे दर्शकों के लिए बता दें। देखिए, जैसे कि मुख्य All right, Alok, my apologies. I will come back to you, but let's cut across. The SKM is currently speaking. मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 1 साल के से ज्यादा कुछ दिन बाद जब ये आंदोलन शुरू हुआ, 26 नवंबर को पिछले साल 1 साल लगातार सारे देश के किसानों ने हर एक ने अपनी तरफ से जो बन पाया इस आंदोलन की सफलता के लिए किया, सबका धन्यवाद। और आज एक बड़ी जीत लेके जा रहे हैं, एक अहंकारी डिक्टेटर टाइप सरकार को झुका के हम यहाँ से जा रहे हैं। और ये मोर्चे का अंत नहीं है, आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है
आगे की लड़ाई के लिए। और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को, समीक्षा करेंगे जो जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी। इस पे 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी। और मैं समझता हूं जिन किसानों ने बलिदान दिया इस आंदोलन में, उनको श्रद्धा संपन्न करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। उनकी कुर्बानी की नींव पे ये आंदोलन खड़ा रहा। मैं धन्यवाद देता हूं इन सब संस्थाओं को, प्रेस को, मीडिया को, सोशल मीडिया को खासतौर पर, और बहुत सी संस्थाएं जिन्होंने, डॉक्टर्स को, जिन्होंने इस आंदोलन में हमारी हर तरह से मदद की। मैं धन्यवाद देता हूं लंगर चलाने वाले सभी भाइयों का, बाबाओं का, जिन्होंने हमें लंगर में कोई दिक्कत नहीं आने दी। मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों को जो इर्द गिर्द के गांव में रहते हैं, उन्होंने बहुत कष्ट झेला हमारे लिए, लेकिन उनका सहयोग हमारे साथ बना रहा। मैं धन्यवाद देता हूं बहुत से एनआरआई भाई हैं जिनके ऊपर सरकार ने केस भी डाले, वो हर तरह से हमारे साथ खड़े रहे, मदद करते रहे, लेकिन इस फैसले में उनको भी हमने साथ रखा केस वापस लेने के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूं सभी लोगों को जिनको नोटिस आए एनआईए के और दूसरे ईडी के छापे पड़े, इनकम टैक्स के छापे पड़े, उन सब लोगों को जिन्होंने हमारे लिए ये मुसीबतें झेली, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं। और हमने सबके केसेस वापस करवाने के लिए सरकार से लिखित में दिया है और इसकी समीक्षा करेंगे 15 जनवरी तक क्या सरकार करती है। और मैं समझता हूं इस आंदोलन से किसानों का जो बल है, मानसिक बल और बढ़ेगा। और आगे की बार जब आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, एसकेएम एक ऐसी संस्था खड़ी हो गई है सारे देश के किसानों के लिए नहीं, बल्कि सारे देशवासियों के लिए, दुनिया के लिए एक नया स्वरूप आंदोलन का देने वाली संस्था खड़ी हो गई है, जो सरकार के हर गलत काम का हर समय पे जो करारा जवाब देगी। तो मैं सभी टीवी चैनल्स का और सोशल मीडिया का एक बार फिर सबको धन्यवाद देता हूं। आपने हमें इस आंदोलन में कवरेज दी और ये हमारी बात लोगों तक पहुंचाई। मैं धन्यवाद देता हूं हर गांव की पंचायत को, जगह जगह से मैं धन्यवाद देता हूं सबको जो यहाँ राशन और बाकी सहायता देते रहे, जत्थे देते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं कुर्ली की पंचायत को, खासतौर पर टीकरी की पंचायत को, शाहजहांपुर में और गाजीपुर में, पलवल में, जिन लोगों ने हमारा पूरी तरह से हर तरीके से पूरा साथ दिया और हमारे साथ खड़े रहे, मुश्किलें भी झेली लेकिन हमारे साथ खड़े रहे। मैं धन्यवाद देता हूं कटारिया टाइम्स के मालिक और राणा जी का, जिन्होंने दूध की, आटे की वगैरह सप्लाई वगैरह में कोई कमी नहीं आने दी। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ वॉलंटियर्स को जिन्होंने इसको प्रिपेयर करने में हमारी मदद की, और हॉकी की टीम्स का जिन्होंने दिन रात एक करके इस मोर्चे में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, हमारी मदद की। तो अब मैं निवेदन करूंगा हरीश महिला जी वो अपनी तरफ से कुछ कहेंगे। एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं दादा सब। अब हन्नान मौला जी बोलेंगे। आप कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, थोड़ा वॉल्यूम कम कर दो भाई। कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं और 8 बार पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं हन्नान मौला जी। हमारे लिए ओपनिंग बैटिंग राजेबाज जी ने की है, लास्ट बैट्समैन राकेश टिकैत रहेंगे जी। साथियों, पहले मैं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरा देशवासी, मीडिया और किसान जो संघर्ष किया सबको मैं अभिनंदन करता हूं। आज जो किसान आंदोलन हुआ, ये किसान आंदोलन
आजादी का बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़ा जनवादी आंदोलन है। दूसरे है आजादी का बाद सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण आंदोलन है। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान के जनता का जो एकताबद्ध आंदोलन है, इतना बड़ा एकता भी हिंदुस्तान में कोई दिखाई नहीं दिया है। आज किसान एक नया परिचय मिल गया। आज जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटने का साजिश ये देश में चल रहा है। मगर आज किसान आंदोलन दिखा दिया, हम हिंदू ना, मुसलमान ना, सिख ना, ईसाई ना, हम जाट ना, हम किसान है। और किसान एक नया परिचय ये आंदोलन ने तय कर दिया। इसी आंदोलन आज जनवाद पर हमला हो रहा था, संविधान पर हमला हो रहा था, राइट टू डिसेंट खत्म किया जा रहा था, मानविक अधिकार हमला हो रहा था। ये सारे को सामने एक बड़ा चुनौती खड़ा किया, ये नया बुनियाद बनाया। इस बुनियाद के आधार पर आने वाला दिन में सारे जनवादी आंदोलन इकट्ठा होकर लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और इसके इस लड़ाई को जो नेतृत्व किया, आने वाला दिन में भी इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 15 जनवरी तो दोबारा हमारा सरकार का जो काम, उसको निगरानी करके, उसको समीक्षा करके आगे वाला कार्यक्रम हम ऐलान करेंगे। अब गुरनाम सिंह जी, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी, आप भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं। सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद है जो आप लंबे समय से इस आंदोलन से जुड़े हुए आवाज उठाते रहे। सभी का धन्यवाद तो माननीय राज्यपाल जी ने कर दिया है, सभी संस्थाओं कर्मियों जिन्होंने सहयोग किया है, संयुक्त मोर्चे की तरफ से धन्यवाद कर दिया है। अभी जो हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं, उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग बनाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर हम उसी स्तर पर स्टैंड कर जाएंगे और फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हटती है। और जो सब दुनिया का सबसे हठी आदमी हम कह सकते हैं, सबसे हठी प्रधानमंत्री कह सकते हैं, जिसको इस आंदोलन ने झुकाया है, जिसको देश के किसानों ने झुकाया है। और एक तरह से उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने देश के किसानों को इकट्ठा कर दिया। आज देश के सारे संगठन उनके अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए पूरे देश के किसान संगठन एक मंच पे आए हैं और आगे भी ये लड़ाई जो है अन्य मुद्दों के ऊपर, क्योंकि अभी तो जो 5 जून 2020 को जो उन्होंने कानून बनाए थे, अभी तो वही वापस लिए हैं। उसके पहले की जो स्थिति किसानों की थी वो भी अच्छी नहीं थी। उसके सुधार के लिए अभी लड़ाई बाकी है और उसको कदम दर कदम हम आगे बढ़ाते रहेंगे और हर महीने जो है वो समीक्षा करके देखते रहेंगे कि सरकार ने अभी तक क्या किया है और उसके बाद अगला कदम जो है वो उठाते रहेंगे। तो बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है और जो हमारा आज का जो आंदोलन है वो आप स्थगित कर रहे हैं। एक बात आप जान रहे हैं कि उसको समाप्त नहीं, स्थगित कर रहे हैं और पूरे जो मुकदमे किसानों पे, उनके सहयोगियों पे, एनआरआई पे, किसी कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार पे कोई छापा पड़ा हो, शहीदों को मुआवजा, ये सभी मांगे सरकार ने जो है हमारे से जो है मानी है और उसकी हर महीने समीक्षा करने के बाद हम अगला स्टेप उठा चलेंगे। सर का धन्यवाद। शिव कुमार कक्का जी मध्य प्रदेश से हैं, आप भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं। बंधुओं नमस्कार। हमारे सभी साथियों ने, सभी सहयोगियों को जो आंदोलन में सहयोग करते रहे हैं उनका आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद दिया है। मैं संक्षेप में इतना कहूंगा कि देश के तमाम लोग विभिन्न क्षेत्रों के, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, नागरिक हो, जिनको हमारे इस आंदोलन से तकलीफ हुई है, उनसे हम
माफी मांगते हैं, क्योंकि आंदोलन जब होता है तो All right, that was the briefing of the Sahyog Kisan Morcha. This is now after 13 months. The borders of the national capital will finally be vacated by the farmers. They will be heading back. They've already started removing the tents and other structures that were erected at the borders. But on that note, we're going to slip into a very quick break. We'll be back.